سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے ہتھیلی میں پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو کیا ہم کو نہیں دیکھ رہے؟ ہم کو بھی دیکھ رہے. شیر سنیے محبت کے ساتھ کہ ہم دکھیوں کا سہارا بغداد والے آقا. ہم دکھیوں کا سہارا. آپ تو بہت سب لے کے 10 روپے لے کے آ رہے. ہم دکھیوں کا سہارا بغداد والے آقا کر دو کرم خدارا. بغداد والے آقا اور 12 برس کی ڈوبی کشتی نکالی تم نے بڑھیا نے جب پکارا. بغداد بڑھیا نے جب پکارا بغداد والے آقا. بھائی پھر آئیے گا ماشاءاللہ. بڑھیا نے جب پکارا بغداد والے آقا اور نبیوں میں جیسے وہ ہیں ولیوں میں ویسے تم. نبیوں میں جیسے وہ ہیں ولیوں میں ویسے تم ہو. یہ مرتبہ تمہارا بغداد والے آقا. یہ مرتبہ تمہارا بغداد والے آقا. علامہ عادل صاحب آ رہے 10 منٹ کے لیے جو تقریباً 9 بجے سے جلوہ بناتے رہتے ہیں. جلوہ ہی انہی کا ہے. محبت کے ساتھ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں علامہ عادل صاحب کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. ایسے تھوڑے ہو سب لوگ اپنے ہاتھوں اٹھائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. فصل کے اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مخدوم سمنا عرس شیخ آدم علامہ عادل اختر نوری. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. معزز سامعین حضرات، آپ منبر رسول پر جماعت اہل سنت کے وہ تمام تر مقدس شخصیتوں کے چہروں کا دیدار کر رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ جماعت اہل سنت کے ایک بہت ہی بڑے اور مضبوط عالم دین خطیب شہیر عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی صادق رضا صاحب حاضر، جن کا خطاب نایاب آپ نے ہم نے سماعت کیا. نقیب اعظم سیمانچل حضرت علامہ و مولانا کونین رضا صاحب کشش پر نبی کی خوبصورت نقابت کا لطف آپ اٹھا رہے ہیں. میں بہت دیر نہیں چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا. آپ میرے بعد دنیا سنیت کا وہ عظیم خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا مفتی فاروق عالم صاحب اللہ بلرام پوری ان کا خطاب نایاب سماعت کریں گے. پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے میں آپ کی عقیدتوں کا مرکز کچھوچا شریف کی سرزمین سے تشریف لائی وہ عظیم ہستی، جن کے چہرے زیبا کی زیارت کی غرض سے، جن کی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی غرض سے اور اپنے مرشد کامل حضور شیخ اعظم کے عرس میں آپ عقیدتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. آپ کے سامنے میں وہ عظیم ذات ہوگی. آپ ان کے چہرے اقدس کی زیارت بھی کریں گے اور اپنے آپ کو مستفیض بھی فرمائیں گے. بارگاہ رسالت میں ہم اور آپ عقیدت کے ساتھ درود شریف پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، شمالی ہند کا یہ شہرت یافتہ ادارہ جس کے پرچم تلے آج آپ بیٹھے ہوئے علماء کی تقاریر کو سن رہے ہیں، محتاج تعارف نہیں. ان کے در و دیوار یہاں کی تمام تر مدرسے کی تمام تر عمارتیں آپ سب کو دعوتی نظارہ دے رہی ہے. اور آج کا یہ عظیم الشان جلسہ روح پرور کانفرنس دینی و تاریخی اجتماع جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں،
میں دل کی گہرائی کے ساتھ عقیدت میں ڈوب کے یہ کہہ سکتا ہوں، قسم خدا کی یہ جلسہ جس عبقری شخصیت کی طرف منسوب ہے، ان کا فیضان ہم پر، آپ پر، سب پر جاری ہے۔ آپ اس عقیدت کے ساتھ بیٹھے رہو، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے کچوچی فیضان آپ پر جاری رہے گا۔ اور جس عقیدت کے ساتھ آپ آئے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ آج کی نیت نیک اور خوش عقیدت کے ساتھ آپ آئے ہیں تو بغیر آپ کچھ پائے یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ آپ عقیدت کے ساتھ بیٹھیں۔ آج آپ دیکھیں گے آپ کا یہ ادارہ سال بھر کی مشقتوں کا، سال بھر کی محنتوں کا جو ثمرہ انہوں نے حاصل کیا وہ آپ کے سامنے میں ہوگا جب طالبان علم نبویہ کے سروں میں دستار فضیلت کا تاج زرعی رکھا جائے گا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ مائیں، بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف مدارس اسلامیہ میں بھیجا کرتے ہیں۔ اور انہی مدارس اسلامیہ میں سے ایک عظیم ادارہ آپ کا محبوب ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ خانقاہ 84 ہے، جس کے اراکین و ممبران اپنی تمام تر مشقتوں کے ساتھ آپ کے سامنے میں اپنی محنتوں کا ثمرہ، اپنی محنتوں کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے میں دکھایا جانے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی جس کے اولاد عطا فرماتا ہے، اور وہ ماں باپ بہت ہی قابل مبارکباد ہے جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے یا اپنے بچوں کو عالم دین بناتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حافظ قرآن، عالم دین ہر کوئی نہیں بناتا، ہر کوئی اپنی اولاد کو عالم دین نہیں بناتا، اور خاص کر آج کے زمانے میں، خاص کر آج کے دور میں ہر باپ یہ چاہتا ہے میرے بیٹے کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہو، میرے بیٹے کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہو، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو کامیابی اسے ملے گی، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو کامیابی اسے ملے گی، میرا بیٹا ماسٹر بن جائے تو کامیابی اسے ملے گی، میرا بیٹا انجینئر بن جائے تو کامیابی اسے ملے گی۔ آج ہمارا آپ کا مزاج یہ بنا ہے بیٹا اگر ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو گویا کی کامیابی ملنا یقینی ہے، بیٹا اگر انجینئر بن رہا ہے تو کامیابی ملنا یقینی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے شک انجینئر بننے والا بچہ اپنے وقت میں کامیاب نظر آتا ہے، بے شک ڈاکٹر بننے والا بچہ اپنے وقت میں کامیاب نظر آتا ہے، بے شک ماسٹر بننے والا بچہ اپنے وقت میں کامیاب نظر آتا ہے، لیکن اس کی وہ کامیابی جب تک وہ دنیا میں بقید حیات ہے تب ہی تک منحصر ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد اس کی کامیابی دنیا ہی میں دھری رہ جائے گی۔ لیکن وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، حضرات اس کی کامیابی کا عالم یہ ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے دنیا انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جب دنیا سے انتقال کر کے وہ اپنی قبر میں جاتا ہے میرا پروردگار اسے اس کی قبر میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور جب قبر سے اٹھ کر روز قیامت میدان محشر میں وہ بیٹا اٹھے گا جو عالم دین یا حافظ قرآن ہوگا، قسم خدا کی اس کو میرا پروردگار میدان قیامت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علم دین مصطفیٰ، علم دین مصطفیٰ۔ حضرات، اور وہ کون ہوگا؟ وہ حافظ قرآن ہوگا یا عالم دین ہوگا۔ حافظ قرآن کے سروں پہ دستار رکھا جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کو کل قیامت کے روز میرا پروردگار کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ آئیے سوال کیجئے حضرت علامہ مفتی سالک رضا حاذق صاحب سے، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ قیامت کی اس بھیڑ میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا، ایسے عالم میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور ایسے ہی عالم میں رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ میرا پروردگار حافظ قرآن کو اجازت دے گا، حافظ قرآن کو اجازت دے گا کہ وہ 10 ایسے لوگوں کو تو جہنم رسید ہو گیا ہے، حافظ قرآن کو اجازت ملے گی وہ اپنے 10 ایسے قریبی لوگوں کے حق میں سفارش کرے اور اسے اپنے ساتھ
बिरादरी के लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बैठे रहिए, खड़े होकर के खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक साहब का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उनसे शेख आजम फैजान सरकार मखदूम जिंदा अल्लामा मुफ्ती फारूक आलम साहब किबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये देखिए आपके निगाहों के सामने में खतीब शहीद हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फारूक आलम साहब किबला बलरामपुरी वो भी तशरीफ फरमा है। आज के इस अज़ीमुल जलसा के जिस अज़ीमुल शान जलसे की सदारत निभा रहे हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शम्स तौहीद साहब किबला वो भी तशरीफ फरमा है। मेरे बाएं जानिब आपके इस इदारे के नाज़िम आला हजरत मोहतरम मुकर्रम आली जनाब मास्टर आफाक आलम साहब अशरफी वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चंद बातें आपके सामने में रख रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हर कोई अपने बेटे को आलिम दीन नहीं बनाता, हाफिज़ कुरान नहीं बनाता। आज हम और आप में से वही अपने बेटे को आलिम दीन बनाता है जो गुर्बत के आलम में है, जो गरीबी के आलम में है। एक गरीब अपने बच्चे को जब पढ़ाने पे आता है तो वो डॉक्टरी पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, कोई बड़ी डिग्रियां देने के लायक तो वो होता नहीं है, अपनी गुर्बत में होता है। तब जाकर उसके दिल में एक बात जन्म लेती है, तब जाकर उसके दिल में एक बात पैदा होती है, चलो हम अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाएंगे, चलो हम अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, तो कम से कम अपने बेटे को हम हाफिज कुरान बना करके कुरान की दौलत से उसे हम जो है तैयार करेंगे, आलिम दीन बनाएंगे, अहादीस मुस्तफा की दौलत दे करके हम उसे मुज़य्यन करेंगे। और यकीन जानो मुसलमानों, डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने वाला एक डॉक्टर जब डॉक्टरी पे कामयाब हो जाता है तो उसे कुर्सी मिल जाया करती है। इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग में कामयाब हो जाता है तो उसे कुर्सी मिल जाया करती है। सियासतदान अपने सियासत में कामयाब हो जाता है तो उसे कुर्सी मिल जाया करती है। मास्टर अपनी मास्टरी की डिग्री में कामयाब होता है तो उसे कुर्सी मिल जाया करती है। ये दुनियावी डिग्रियां हैं दोस्तों, ये सबको दुनिया में कुर्सियां मिला करती है। डॉक्टर को कुर्सी मिलती है, इंजीनियर को कुर्सी मिलती है, इंस्पेक्टर को कुर्सी मिलती है, मास्टर को कुर्सी मिलती है। दुनिया की डिग्री हासिल करने वाला जब कामयाब होता है तो उसे कुर्सी मिला करती है। और जब कोई बच्चा मदरसे की दाल रोटी में अपनी जिंदगी बसर करके हाफिज़ कुरान बनता है तो उसे दुनियावी कुर्सी नहीं बल्कि मिंबरे रसूल मिला करता है, मिंबरे रसूल बना करता है। और ऐसी इज्जत मेरा परवरदिगार उसे अता फरमाता है कि जब वो इमाम की हैसियत में किसी मस्जिद में मुतय्यन हो जाता है तो पीछे में वही डॉक्टर भी है, पीछे में वही इंजीनियर भी है, पीछे में वही मास्टर भी है, पीछे में वही सारे लोग हैं जो दुनियावी डिग्रियों के चक्कर में न जाने क्या क्या कर गुजरे। लेकिन आज एक हाफिज़ कुरान जो गरीब का बच्चा है, गुर्बत व अफलास के आलम में पल भर करके हाफिज़ कुरान बन के आया है, लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी है तो मस्जिद का इमाम बना दिया है। और जब मस्जिद का इमाम बन के आया है तो वो सारे के सारे उसी इमाम की इक्तिदा में अपने सरों को सजदे में रख करके अपने रब की तस्बीह पढ़ रहे हैं कि एजाज़ अल्लाह उसे अता फरमाता है, ये मकाम अल्लाह उसे अता फरमाता है, ये शौकत अल्लाह उसे अता फरमाता है जिसके सीने में कुरान की दौलत होती है, जिसके सीने में हदीस मुस्तफा हुआ करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप क्या समझते हैं आज दुनिया हक़ारत की नज़र से देख रही है, आज दुनिया की नज़र से देखती है। आलिमों के ताल्लुक से, हाफिजों के ताल्लुक से, कारियों के ताल्लुक से न जाने कैसा कैसा ज़हन रखते हैं। मैं कहूँगा लोगों, तुम कुछ भी कह लो लेकिन उसको जो इज्जत मेरे परवरदिगार ने दी है तुम उसकी इज्जत को छीन नहीं सकते, तुम उसकी इज्जत को छीन नहीं सकते। आओ इज्जत अल्लाह जब कोई हाफिज़ कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है तो अल्लाह उसे कैसी इज्जत देता है। मैं कहीं और नहीं, चंद बातों में आपके सामने में एक तरफ वक्त का इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है, दूसरे तरफ वक्त का इमाम हजरत इमाम मालिक है। इमाम मालिक गुर्बत व अफलास के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके घर में गरीबी का हाल है इसलिए कि बाप का साया पहले ही सर से उठ चुका है। इमाम मालिक के घर में इमाम मालिक की 6 बहनें हैं जिसकी किफालत की जिम्मेदारी इमाम मालिक के हाथ में है। हजरात, एक बेवा माँ है और
से आलम में पूरे घर का खर्चा चलाना है। इमाम मालिक बचपने के आलम में है, कई साल के आप हुए ही हैं, ऐसे आलम में हजरात होता क्या है। माँ ने जब देखा बेटा यतीम हो गया है, घर में 6 बेटियां हैं, तो ऐसे आलम में घर का खर्च कैसे चलेगा। हजरत इमाम मालिक की माँ ने अपने बेटे को लिया और लेकर बाजार पहुंचती है और एक धोबी के सामने में जाकर के वो ये कहने लगती है, मेरे बेटे को भी कपड़ा धुलने का तुम तरीका बता दो ताकि कोई कुछ मालो सर मिले, कुछ दौलत हासिल हो, कुछ रुपया पैसा मिले तो मेरे घर का खर्च चले। हजरात धोबी बड़ा नेक तीरथ था, उन्होंने वादा किया ठीक है ए अल्लाह की बंदी, हम तुम्हारे बच्चे को कपड़ा धुलने का तरीका भी बताएंगे और उसे 2-3 दिनार जो है उसको बतौर मजदूरी भी देंगे। जब वो अपने काम में बहुत ज्यादा अपने काम करने लग जाएगा तो फिर उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, उसकी मजदूरी बढ़ा दी जाएगी। अल मुख्तसर ये प्यारे माँ ने अपने बेटे को धोबी के हवाले किया और उसके बाद वापस आ गई। तारीख में आता है दूसरा दिन इमाम मालिक अपने घर से निकलते हैं, मजदूरी करने के गरज से निकले हैं। घर में 6 बहनें हैं, घर में एक बेवा माँ है, कोई दूसरा सहारा रही है, गरीबी का आलम है, लेकिन वो वक्त का इमाम अपने घर से निकले, चलते रहे जैसे कि एक नुक्कड़ पे जाते हैं, चौराहे पे पहुंचते हैं। उन्होंने क्या देखा, सामने में हजरत इमाम आजम खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम आजम को खड़े देखा। इमाम आजम ने इमाम मालिक जो कि बचपने के आलम में है उनके चेहरे को देखा, उनकी पेशानी को देखा। वो वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा, उन्होंने जैसे ही देखा इमाम मालिक को अपने करीब बुलाया, सर पे दस्ते शफकत फेरा और कहा, बच्चा कहाँ जा रहे हो। हजरत इमाम मालिक कहते हैं, सरकार मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने के लिए, मैं जा रहा हूँ मेहनत करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, इमाम मालिक ने कहा, क्या तुम मजदूरी करने जा रहे हो, तुम मजदूरी करने जा रहे हो, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, क्या तुम्हें इल्म नहीं हासिल करना है। इमाम मालिक ने अपनी बेबसी को बताया, अपनी कमजोरी को बताया, अपनी गुर्बत को अफलास को बताया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही बताया इमाम मालिक ने इमाम मालिक का हाथ इमाम आजम पकड़ते हैं और कहते हैं, चल तुझे मजदूरी नहीं करनी, चल मेरे दरसगाह में पहुंच जा, चल मेरे मदरसे में पहुंच जा, वहां पर मदरसे के बच्चों के साथ मिलकर के कुरान की तालीम को हासिल कर ले, इल्म दीन को हासिल कर ले। इमाम आजम इमाम मालिक का हाथ पकड़ के आए हैं अपने का मदरसे में और उन्हें इल्म सिखा रहे हैं। अब इमाम मालिक रोजाना 3 दिन भर हजरत इमाम आजम के मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, रात को घर जाते हैं। दूसरा दिन होता है, इमाम मालिक फिर आते हैं। माँ ये सोच रही है बेटा मेहनत करने जा रहा है, माँ ये सोच रही है बेटा मजदूरी करने जा रहा है। जैसे कि महीना पूरा हुआ, माँ ने इमाम मालिक से कहा, बेटा तुम्हारा महीना पूरा हो गया है, जाओ अब जाना तो जाकर के रकम लेकर के आना, अपनी मजदूरी को लेके आना। अल्लाह गनी, इमाम मालिक कहते हैं, माँ मजदूरी तो उसे मिलेगी जो ड्यूटी किया हो, मजदूरी तो उसे मिलेगी जो मेहनत किया हो, मजदूरी तो उसे मिलेगी जो कोई काम करने गया हो। माँ मैं तो काम करने गया ही नहीं, मैंने तो कुछ ड्यूटी की ही नहीं है, मैं तो इमाम आजम की बारगाह में जाता हूँ, मैं तो वहां जाकर के इल्म सीख रहा हूँ, मैं तो वहां पर जाकर के मसले का इल्म सीखता हूँ। जितना ही सही इमाम मालिक की माँ ने सुना, माँ ने कहा, क्या उस मौलवी ने इमाम ने हमारे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, उन्होंने मेरे बेटे को पकड़ के मसले सिखाने शुरू कर दिए। उन्हें क्या पता मेरे घर का क्या हाल है, उन्हें क्या पता मेरे घर का क्या हाल है। 6 बेटियां अल्लाह ने मुझे दी है, इन बेटियों का क्या होगा, मैं खुद बेवा हूँ, मेरा क्या होगा। अगर वो इल्म सीखता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा। हजरत इमाम मालिक की माँ बड़ी तेजी के साथ निकलती है, इमाम आजम के सामने खड़ी है। वो इमाम आजम जिसको अल्लाह ने इतनी दौलत दी थी, इतनी दौलत दी थी कि पूरे कूफा वो शाम में आपकी अमीरी का लूहा माना जाता था। उस इमाम आजम के सामने में जिसको अल्लाह ने ऐसी शान और शौकत अता फरमाई थी। हजरत इमाम आजम जब आप गए थे रोज़े रसूल में हाजिर हुए थे तो इमाम आजम ने सलाम किया था, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल अंबिया। जैसे कि इमाम आजम ने रोज़े रसूल पे खड़े होकर के ये सलाम किया तो कब्र रसूल से आवाज आई थी, वालेकुम अस्सलाम
इमाम या सैयदुल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के सरदार, ऐ मुसलमानों के इमाम, तुम पर भी सलामती हो। इमाम आजम है। इमाम आजम के सामने में बेवा माँ ने आकर कहना शुरू किया, ए मेरे इमाम, आपने ये क्या किया है? मेरे बच्चे को इल्म पढ़ाने के गरज से, मसले सिखाने के लिए अपने घर में, अपने मदरसे में रख दिए। मेरे घर का पता आपको हासिल लगी है, मेरी गुर्बत तो अब्बास का क्या आलम है। अल्लाह अल्लाह। इमाम आजम ने सुनते रहे और इमाम मालिक की माँ सख्त सुस्त कहती रही, लेकिन इमाम आजम को जवाब नहीं देते। जब हजरत इमाम मालिक की माँ खामोश हो जाती है तो इमाम आजम कहते हैं, ए अल्लाह की बंदी, ए माई बता तुम्हारे घर का खर्चा कितना है, महीने में कितना खर्च होता है? इमाम मालिक की माँ कहती है 40 दीनार का खर्चा मेरे घर में एक महीने का है। इमाम आजम बोल पड़े, ए माँ जाओ, आज के बाद तुम्हें आने की जरूरत नहीं, जब तक इमाम मालिक, जब तक ये मालिक पढ़ता रहेगा तुम्हारे घर का खर्चा इमाम आजम अब देता रहेगा, खर्चा देता रहेगा। तारीफ में आता है मुसलसल 30 साल तक इमाम मालिक पढ़ते रहे और इमाम आजम उनके घर का खर्चा चलाते रहे। हजरात, आज आपसे अगर पूछा जाए, आज आपसे अगर कहा जाए कि ज़ेवर इल्म से मुज़य्यन करने के लिए अपने मदरसे के तालिब इल्मों की जिंदगी को रोशन और मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए आपसे कुछ रकम की जरूरत है, एक रसीद की जरूरत पड़ती है, तो आप देने में कतराते हो। इमाम आजम से सबक सीखो, जिनका एहसान आप पर इतना बड़ा है वो इमाम आजम ही का एहसान है। जो आप सही से रुकू कर पा रहे हो, जो आप सही से सजदा कर पा रहे हो, जो आप सही से नमाज पढ़ रहे हो, उस इमाम आजम से सबक सीखो। बैठ कर बातें सुनो, इसलिए कि मेरी तकरीर लंबी हो रही है, 2-4 जुमले में अपनी बात को समेटता हूँ। हजरात, इमाम आजम 30 साल तक खर्चा देते रहे। अब वही इमाम मालिक से, इमाम आजम से इमाम मालिक की माँ पूछती है, ऐ मेरे इमाम, आप मेरे बच्चे को मसले सिखाइएगा, आप मेरे बच्चे को इल्म हदीस सिखाइएगा, आप मेरे बच्चे को इल्म फिक़ह सिखाइएगा, आप मेरे बच्चे को इल्म नौ सिखाइएगा। ये आलिम तो बन जाएगा, लेकिन बन के क्या करेगा? बनने के बाद ये क्या करेगा? इमाम आजम ने जवाब दिया था, ऐ माँ, मेरी निगाह देख रही है, तुम्हारा ये बच्चा इतना ज़हीन व फतीर है, इसकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आने वाला है कि ये कहीं और नहीं, वक्त का जो सुल्तान होगा तख्ते शाही में बैठकर बादशाह वक्त के साथ वो खाना खाता हुआ तुम्हें नजर आएगा, मिठाई खाता हुआ तुम्हें नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। जब इमाम मालिक बनकर चमके और इमाम मालिक को खलीफा हजरत हारून रशीद के जमाने में इमाम मालिक को बुलाया जाता है। हारून रशीद ने कहा, ए इमाम मालिक, मैं आपको जिस जज बनाता हूँ, मैं आपको जज मुतय्यन करता हूँ, मैं आपको जज के ओहदे पर फाइज करता हूँ। इमाम मालिक जज के ओहदे पर फाइज हुए, अपनी माँ को खत लिखा, कहा, ऐ माँ, आकर अपने बेटे को देख, वो बेटा जो गुर्बत व अफलास के आलम में घर से निकल के इमाम आजम की चौखट में आया था, तेरे बेटे को मेरे परवरदिगार ने कैसी शान अता की है। हजरात, तारीख में आता है इमाम मालिक जज बनते हैं और जज बनने के बाद आप जज की कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरे तरफ हारून रशीद है। इसी बीच में हजरत हारून रशीद की बीवी हलवा पकाती है और हलवा पका करके हारून रशीद के दरबार में भेजती है। खलीफा हारून रशीद अपने तख्ते शाही पर बैठकर दस्तरखान बिछवाते हैं और आवाज देते हैं, ऐ मेरे वजीरों, जाओ जरा इमाम मालिक को बुला के लेकर के आओ, इमाम मालिक को बुला के लेकर के आओ। इमाम मालिक बुलाए गए, इमाम मालिक बुलाए गए। खलीफा हारून रशीद तख्ते शाही के एक किनारे पर वो खुद बैठे हैं, दूसरे किनारे पर इमाम मालिक बैठे हैं। अभी दोनों के दोनों कुछ तनावुल ही कर रहे थे। इसी आसने में इमाम मालिक की माँ पहुंच जाती है। इमाम मालिक की माँ पहुंचती है, जैसे ही अंदर कदम रखी तब देखी कि वक्त के सुल्तान के साथ मेरा बेटा मालिक जो है, मेरा बेटा मालिक, खड़े हो जाए इस वक्त
देख रहे हैं आपके औलाद गौसे आजम औलाद और इमाम शाफई हजरत खलीफा हारून रशीद के साथ तख्ते शाही पर बैठ करके खाना तनावुल करते हैं। इमाम मालिक की माँ ने देखा, बिलक बिलक के रोने लगी, चीख चीख के रोने लगी। इमाम मालिक ने अपने ही माँ को जब रोते हुए देखा, अपनी जगह से उठे, जाकर के अपनी माँ को संभाला और पूछने लगे ऐ माँ, आखिर बता तो सही, तुम अपने बेटे को हारून रशीद वक्त के खलीफा, वक्त के सुल्तान के साथ तख्ते शाही में बैठ कर खाना खाते थे, बजाय खुश होने के तुम आंसू क्यों बहा रही हो, तुम चीख क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? इमाम मालिक की माँ ने जवाब दिया था, बेटा जैसा कि मैंने तुमको इस शान और शौकत के साथ देखा, मुझे तुम्हारे बचपने में इमाम आजम की कही हुई बात याद आ गई। इमाम आजम ने बचपने ही में यह कह दिया था कि एक ऐसा जमाना आएगा, मेरा बेटा वक्त के सुल्तान के साथ तख्ते शाही में बैठ करके खाना तनावुल करेगा। मैं यही देख के रोने लगी। बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये तो इमाम आजम का कमाल है। हजरात, ये है आलिम दीन बनना, ये है हाफिज कुरान बनना, जिसको अल्लाह इल्म दीन अता फरमाता है तो रब तबारक व तआला उसे इतनी इज्जत अता फरमाता है।